یا اللہ، کیا کوئی ہے جو میرا بھی ہو؟ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ منحوس، جلدی پوچھا لگا اور پھر آ کر میرے پاؤں دبانا، جلدی کرو۔ یہ کہانی ہے فرحات کی، ایک ننھے سے معصوم بچے کی، جس کی زندگی خوشیوں سے شروع ہو کر آزمائشوں کے اندھیروں میں ڈوب گئی، مگر پھر اللہ کی رحمت نے اسے ایسا سہارا دیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عرب کے ایک چھوٹے سے قصبے میں قاسم اور رقیہ نامی میاں بیوی رہتے تھے، نہایت نیک، با اخلاق اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ۔ 5 وقت کی نماز، روزے، زکوٰۃ اور ہر نیکی میں آگے رہنا ان کی زندگی کا اصول تھا۔ وہ دنیاوی آسائشوں کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، بلکہ جو اللہ نے دیا اسی میں خوش رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی سادگی اور شکر گزاری کے بدلے میں انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ ایک چھوٹا سا کاروبار، مگر اس میں ایسی برکت کہ ہر ضرورت آرام سے پوری ہو جاتی۔ ان کے گھر میں محبت تھی، سکون تھا، اور سب سے بڑھ کر ایک ننھا سا بیٹا فرحات نہایت خوبصورت، معصوم اور باادب بچہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور دل میں پاکیزگی تھی۔ وہ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھا، اور قاسم اور رقیہ کی دنیا اسی کے گرد گھومتی تھی۔ لیکن ہر خوشی کو کسی نہ کسی کی نظر ضرور لگتی ہے۔ اسی گھر میں قاسم کا بھائی ہاشم اور اس کی بیوی شکیلہ بھی رہتے تھے۔ بظاہر وہ بہت اچھے اور ہمدرد لگتے تھے، مگر حقیقت میں ان کے دل حسد اور نفرت سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اور یہی چیز انہیں اندر ہی اندر جلاتی رہتی تھی۔ وہ قاسم اور رقیہ کی خوشیوں سے، ان کی محبت سے، اور سب سے بڑھ کر فرحات سے شدید حسد کرتے تھے۔ وہ ہر وقت یہی سوچتے رہتے کہ کیسے ان کی خوشیاں چھین لی جائیں۔ وقت گزرتا گیا، اور ایک دن قاسم اور رقیہ کی دیرینہ خواہش پوری ہونے کا وقت آ گیا، عمرہ کی سعادت۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے گھر بلایا ہے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور تیاری شروع کر دی۔ قاسم نے اپنے بھائی ہاشم کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی اور کہا کہ تمام اخراجات وہ خود برداشت کرے گا، مگر ہاشم نے چالاکی سے انکار کر دیا اور پیسے لینے کو ترجیح دی۔ آخرکار قاسم اور رقیہ عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جاتے وقت انہوں نے اپنے ننھے بیٹے فرحات کو ہاشم اور شکیلہ کے حوالے کر دیا، اس امید کے ساتھ کہ وہ اس کا خیال رکھیں گے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ واپسی کے سفر میں اچانک ان کے جہاز کو حادثہ پیش آیا، اور ایک ہی لمحے میں قاسم اور رقیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی روحیں پرواز کر گئیں، مگر پیچھے چھوڑ گئے ایک معصوم بچہ، فرحات، جو اب یتیم ہو چکا تھا۔ قاسم اور رقیہ کی آنکھیں بند ہوتے ہی ہاشم اور شکیلہ کے چہرے بدل گئے۔ وہ اندر ہی اندر خوشی سے جھوم اٹھے۔ اب نہ کوئی روکنے والا تھا، نہ کوئی پوچھنے والا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ قاسم کا کاروبار اور گھر اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی فرحات کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ وہ ننھے سے بچے سے دن بھر کام کرواتے، منحوس، جلدی پوچھا لگا اور پھر آ کر میرے پاؤں دبانا، اسے بھر پیٹ کھانا نہ دیتے، اور سرد راتوں میں اسے بغیر بستر کے باہر چھوڑ دیتے۔ اس کے آنسو، اس کی فریاد کسی کے دل کو نہ پگھلا سکتی تھی۔ فرحات ہر رات اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتا، مگر اسے تسلی دینے والا کوئی نہ تھا۔ ایک رات، سردیوں کی سخت ترین رات تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس دن شکیلہ نے اپنے مہمانوں کے لیے دعوت رکھی، اور اس نے سارا کام فرحات سے کروایا۔ وہ ننھا سا بچہ بخار میں جل رہا تھا، مگر خوف کے مارے ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ رات ہوئی، گھر میں لذیذ کھانے سجے، سب نے پیٹ بھر کر کھایا، اور فرحات کے حصے میں صرف ایک سوکھی روٹی آئی۔ اور جب اس نے ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے شکیلہ کی سخت آواز گونجی، دروازہ مت کھٹکھٹا، وہیں باہر مر جا، ہمارے لیے تو پہلے ہی بوجھ ہے۔ یہ الفاظ فرحات کے ننھے دل پر قیامت بن کر گرے، اور پھر اسے گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ سرد زمین پر
वो अकेला बैठा था, कांप रहा था, उसका जिस्म बुखार से जल रहा था और ठंडी हवा उसके वजूद को चीर रही थी। वो रोते हुए आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, क्या कोई है जो मेरा भी हो? अम्मी, अबू, मुझे ले जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी। जैसे ही उसकी सांसें कमजोर होने लगी, अचानक हवा रुक गई। फजा में एक अजीब सा सुकून फैल गया और अंधेरे में एक नूर उभरने लगा। पूरा माहौल जैसे थम गया हो। फिर वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक हसीन सूरत में ढलने लगी। वो एक जिनजादी थी, बदरू निसा। डरो मत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसके चेहरे पर नूर था, आंखों में शफकत और अंदाज में बेमिसाल सुकून। उसने फरहाद को देखा जो सर्दी से कांप रहा था। वो फौरन उसके करीब आई और निहायत नरमी से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फरहाद ने कमजोर आंखों से उसे देखा और बेहोश हो गया। वो जिनजादी दरहकीकत अल्लाह की तरफ से एक रहमत थी, कासिम और रकिया की नेकियों का सिला, उनके बेटे के लिए एक इनाम। वो उसे अपने साथ एक ऐसी दुनिया में ले गई जहां न कोई जुल्म था, न कोई तकलीफ, जहां सुकून था, मोहब्बत थी और हिफाजत थी। वहां उसने फरहाद का इलाज किया, उसे खाना खिलाया और मां की तरह उसका ख्याल रखा। दिन गुजरते गए और फरहाद आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा। उसके चेहरे पर फिर से रौनक लूट आई, उसके दिल से खौफ मिटने लगा। और फिर वही नन्हा सा बच्चा जिनजादी बदरू निसा के साए में बढ़ने लगा। वक्त गुजरा और एक दिन वही फरहाद एक जवान, बावकार और नूरानी शख्सियत बन चुका था। रेशमी शाहाना लिबास में मलबूस, ऐसा वकार, ऐसा जलाल कि अब उसे पहचानना भी मुश्किल हो गया था। इधर हाशिम और शकीला की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। जिस कारोबार पर उन्होंने नाजायज कब्जा किया था, वही कारोबार अब नुकसान में जाने लगा। घर में सुकून खत्म हो गया। हर वक्त लड़ाइयां, झगड़े और बेचैनी। वो जितना जुल्म करते गए, उन पर उतनी ही मुसीबतें टूटती गईं। एक दिन अचानक उनका सारा कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। कर्जे चढ़ गए और लोग जो कभी उनके आगे पीछे घूमते थे, अब दरवाजे पर आकर उन्हें जलील करने लगे। और फिर एक रात शकीला शदीद बीमार हो गई। इधर हाशिम, जो कभी हुरूर में डूबा रहता था, अब गली गली दरबदर फरहाद को ढूंढने लगा। लेकिन वो फरहाद को ढूंढने में नाकाम रहा। दूसरी तरफ एक दिन जिनजादी बदरुल नसा फरहाद के पास आई। उसने फरहाद को अपने करीब बिठाया और नहायत नर्म रूहानी लहजे में कहा, फरहाद, तुम इस दुनिया के नहीं हो, ये बात तुम हमेशा से जानते थे। आज मेरा काम यहाँ मुकम्मल हो चुका है। जो अल्लाह पाक ने मुझे तुम्हारे माँ बाप के नेक आमाल की वजह से सौंपा था, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी असल दुनिया में वापस जाओ। याद रखो, जिसका कोई नहीं होता, उसका मददगार खुद अल्लाह होता है और उसी ने मेरे जरिए तुम्हारी मदद की है। फिर वो बोली, जब मैं तुम्हें यहाँ लाई थी, तुम सिर्फ 8 बरस के एक कमजोर बच्चे थे, लेकिन आज तुम एक मजबूत, बावकार और नेक नौजवान बन चुके हो, बिल्कुल अपने वालदैन कासिम और रुकिया की तरह। ये कहने के बाद जिनजादी बदरुल नसा फरहाद को साथ लेकर उसकी असल दुनिया में वापस आई। वो एक सुनसान मकाम पर रुकी और कहने लगी, यहाँ से आगे तुम्हारा सफर तुम्हारा अपना है। मेरी जिम्मेदारी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, सिर्फ दिल से मेरा नाम लेना, मैं फौरन तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगी। ये कहकर बदरुल नसा अचानक गायब हो गई। फरहाद कुछ देर वहीं खड़ा रहा, खामोश, हैरान। फिर उसने अपनी असल जिंदगी का सफर शुरू किया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसके सामने हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी, वीरानी, खामोशी, तन्हाई। लेकिन अब वो पहले वाला कमजोर बच्चा नहीं था। जिनजादी बदरुल नसा के साथ रहने के बाद उसमें रूहानी कुव्वतें आ चुकी थीं। ऐसी कुव्वतें जो एक आम इंसान में नहीं होती। इसी ताकत की मदद से उसने महसूस किया
कि उसके चचा और चची किस हाल में हैं। उसके दिल में एक ख्याल आया कि वो वापस जाकर अपने माँ बाप के घर को जरूर देखे। जब वो वहां पहुंचा तो उसका दिल टूट कर रह गया। वो घर जहां कभी हंसी, खुशी और मोहब्बत का बसीरा था, अब एक वीरान खंडर बन चुका था। दीवारें टूटी हुई थीं, दरवाजे बोसीदा हो चुके थे और हर तरफ वीरानी का राज था। ये मंजर देखकर फरहाद को अपने माँ बाप की शिद्दत से याद आई और उसकी आंखें नम हो गईं। फिर उसने अपने चचा और चची के बारे में मालूम किया। जब वो उन तक पहुंचा तो उसने देखा कि वो एक मामूली सी झोंपड़ी में इंतहाई बुरी हालत में रह रहे थे। उनकी हालत काबिले रहम थी। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, चेहरे मुरझाए हुए। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से उन्होंने सूखी रोटी के सिवा कुछ ना खाया हो। उनके जिस्मों पर जख्मों के निशानात थे और जिंदगी में उन्हें पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। फरहाद ने आहिस्ता से उन्हें आवाज दी, चचा। ये आवाज सुनते ही वो दोनों चौंक गए। उन्होंने हैरत से फरहाद की तरफ देखा। उनकी झोंपड़ी में एक खूबसूरत नूरानी चेहरे वाला शाहाना लिबास पहने एक नौजवान खड़ा था। वो उसे पहचान न सके। हल्की फरहाद ने आहिस्ता आहिस्ता आगे कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी मगर लहजा पुरसुकून था। मैं फरहाद हूं, आपसे मिलने आया हूं। ये सुनते ही जैसे उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उनकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। वो फौरन दौड़कर फरहाद के पास आए। चचा ने उसे गले से लगा लिया। उसके कीमती लिबास पर मिट्टी लग गई मगर फरहाद के चेहरे पर जरा भी गुरूर न था। उसने निहायत संजीदगी से कहा, आप लोगों की ये हालत, मुझे तो लगा था आगे जो हुआ वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें कि आप मेरे माँ बाप के घर में बड़ी शान व शौकत से रह रहे होंगे। वही घर जो आपने मुझसे छीन लिया था और मुझे एक सर्द रात में मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सुनकर दोनों खामोश हो गए मगर हैरत की बात यह थी कि दुनिया की ठोकरें खाने के बावजूद भी उनकी फितरत न बदली। उन्होंने फरहाद को उस हाल में देखा तो उनकी आंखों में फिर से लालच चमकने लगी। वो मसनूई मोहब्बत दिखाते हुए बोले, फरहाद बेटा, तुम कहां चले गए थे? हमने तुम्हें बहुत ढूंढा। तुम्हारे जाने के बाद हम एक पल भी सुकून से नहीं सोए। लेकिन अब फरहाद वो मासूम बच्चा नहीं रहा था। वो उनकी हर चाल, हर फरेब को समझ चुका था। उनकी बातों का उस पर कोई असर न हुआ। फरहाद ने उन्हें खामोशी से देखा और फिर धीरे से बोला, जब मैं भूखा था, जब मैं सर्दी में कांप रहा था, तब आपने मेरे लिए दरवाजा बंद कर दिया था। ये सुनकर हाशिम के पास कोई जवाब न था। वो शर्मिंदगी से सर झुकाकर खड़ा रह गया। हाशिम अब पूछता रहा था, काश हमने फरहाद के साथ ऐसा न किया होता। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। फरहाद फिर मुड़ा और उन्हें इसी हालत में रोता और तरसता छोड़कर वहां से चला गया। फरहाद ने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दिन देखने के बाद जब नई शुरुआत का इरादा किया तो उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपने वालिद की तरह दयानतदार, मुखलिस और अल्लाह से डरने वाला इंसान बने। वो उस वीरान जमीन पर खड़ा था जहां कभी उसके वालिद का खुशहाल घर और कारोबार हुआ करता था। उसकी आंखों में नमी थी मगर उस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये आंसू अज़्म के थे। उसने आहिस्ता से मिट्टी को छुआ और धीमी आवाज में कहा, अबू, मैं आपके रास्ते पर चलूंगा। मैं आपका नाम दोबारा जिंदा करूंगा। और फिर एक नई शुरुआत हुई। फरहाद ने अपने वालिद के नाम से ही एक छोटे से कारोबार की बुनियाद रखी। इब्तिदा निहायत सादा थी, एक छोटी सी दुकान, चंद जरूरी सामान और दिल में बेपनाह ईमान। वो फजर के बाद दुकान खोलता, हर गाहक के साथ नरमी और सच्चाई से पेश आता, नाप तोल में कभी कमी न करता।
और हर कमाई में से अल्लाह की राह में हिस्सा जरूर निकालता। लोग उसकी ईमानदारी से मुतासिर होने लगे। देखते ही देखते उसकी छोटी सी दुकान पर ग्राहकों का रश बढ़ने लगा। एक रात जब फरहाद अपनी दुकान बंद करके तन्हा बैठा हिसाब कर रहा था, अचानक हल्की सी नीली रोशनी फजा में फैली। वो समझ गया, बदरुन्निसा जिनजादी उसके सामने जाहिर हुई। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह सुकून और नूर था। फरहाद, तुमने सब्र किया और सच्चाई का रास्ता चुना। अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसानियां लिख दी हैं। और फिर जैसे किस्मत ने करवट ली, एक बड़ा ताजिर उसकी ईमानदारी से मुतासिर होकर उसके साथ शराकत कर गया। दूर दराज शहरों से लोग उसके पास आने लगे। उसके कारोबार में बरकत दिनों में कई गुना बढ़ने लगी। जहां कभी एक छोटी सी दुकान थी, वहां अब एक अजीम तिजारती मरकज खड़ा था। फरहाद ने सिर्फ दौलत नहीं कमाई, बल्कि लोगों के दिल भी जीत लिए। गरीबों के लिए खाना, यतीमों के लिए मदरसा, मुसाफिरों के लिए सराय। लोग कहते थे, ये वही फरहाद है जो कभी बेसहारा था और आज अरब का सबसे बड़ा ताजिर बन चुका है। मगर फरहाद जानता था, ये सब सिर्फ उसकी मेहनत नहीं थी, बल्कि उसके वालिदैन की नेकियां, उसका सब्र और अल्लाह की खास रहमत और बदरुन्निसा की वो गैबी मदद। एक रात फरहाद अपने महल की छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था। हवा में हल्की सी रोशनी चमकी। मैंने कहा था ना, तुम कभी अकेले नहीं हो। फरहाद की आंखों में आंसू आ गए, मगर उस बार ये आंसू खुशी के थे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने यतीम को भी बादशाह बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, जो जुल्म के बावजूद सब्र करता है, अल्लाह उसे वहां से नवाजता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। और वाकई जिसका कोई नहीं होता, उसका मददगार खुद अल्लाह होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो बराहे करम इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले।